सबको मिलके quickly just send me thumbs up. Hurry up, just send me. My phone is about to switch off, so I need the charger. Okay, so almost everybody has got. जिसको नहीं मिले वो just write down no notes. ठीक है? जिस किसी को नहीं मिले है तो just send me no notes. Fine, my dear. So I hope most of the people they got the notes. मैंने किसी का नहीं देखा कौन सा सेक्शन है कौन सा नहीं है. सबको ऑलमोस्ट मैंने सेंड करे हैं जिनके नंबर मेरे पास सारे थे सेव्ड. ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, so the very first thing that is in your chapter is consumer. So that is given on page number 2.1. If you look at the introduction part, they have just mentioned consumer is one who buys goods and services for satisfaction of his wants. So consumer कौन है जो अपनी satisfaction के लिए अपनी wants को satisfy करने के लिए, ठीक है, जो goods को use करता है, consume करता है, तो we call that person is consumer. Now the next thing is ये जो concept है हम लोग दो जो है ways में पढ़ते हैं. One is your cardinal utility, another is your Muskan, your number is already saved with me. I guess Palak is also present inside the class. Palak from humanities background. Palak, Kapish, Onkar, Paramveer is also present. So I hope so you people are present today. नहीं तो मैंने रैंडमली फिर अटेंडेंस लेनी है, फिर आप लोगों का बुरा हाल हो जाना है, फिर मैं मार्क्स नहीं लगाऊंगी आपके. बिकॉज 11th का सारा प्रैक्टिकल आई एम गोइंग टू हैंडल. सो फिर आप लोगों की अटेंडेंस कोई नहीं लगा पाएगा, सोच लेना पहले ही. ठीक है? सो अटेंडेंस इज कंपल्सरी फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम. वहां पे हम लोग एक क्राइटेरिया रखेंगे जिसमें आपके मार्क्स कभी भी फुल नहीं आएंगे. ये चीज याद रखना, अटेंडेंस की वजह से कट जाएंगे. ठीक है? So cardinal, there are two studies which we do with this consumer equilibrium. जब भी हमने करना है consumer को जो study करना है, ठीक है, we have got two approaches. One is your cardinal utility approach, another is ordinal utility approach. So cardinal utility approach is given by Marshall's professor, we can say economist this Marshall. He has given that, and it is also known as Marshall's utility analysis approach. And other name for this is marginal utility analysis. For ordinal utility approach, we have got indifference curve analysis, and that is given by Professor Higgs. So Higgsian analysis is also name given to the ordinal utility approach. अब हमने first समझना है what is cardinal utility approach. So cardinal, the word suggests us that this approach is related with, यहाँ पे लिखा है people consumes goods, different goods and services in order to maximize their satisfaction level. हम लोग क्या करते हैं, सारी goods and services, maybe मुझे economics पसंद हो, आपको maths पसंद हो, so हम उसी हिसाब से कोई चीज को properly क्या करते हैं, services को use करते हैं. ठीक है? so ये concept होता है हमारा. ठीक है? अब ये चीज हम लोग ले रहे हैं जब तो हमारे पास एक proper, हम लोग कहते हैं नंबर में values हम लोग measurable हो, तो we call that as the concept of cardinal utility. ठीक है? So cardinal means when we have something in the measurable form. So it is also used with the word utility. अब utility का meaning क्या होता है? Utility as such तो हम लोग कहते हैं किसी चीज का use, इस चीज की ये utility है, use है. ठीक है? But what is utility in economics? Just tell me that. So what is utility in economics? We have done already. What is utility? I told you earlier even. So we have got two approaches. One is cardinal approach. This is also called Marshall utility analysis. And another name for R, that is marginal utility analysis.
Another approach for this is ordinal approach. This is also called Hicksian. This is also called Hicksian analysis. Best possible use of a commodity नहीं यार, ये नहीं है बेटे. Services provided for public, no. Manibhai is right. Want satisfying power of a commodity is known as utility, yes. So it is the capacity to satisfy your wants. So it is the capacity to satisfy your wants. So in simple words, want satisfying power. So that is utility. किसी भी चीज की अगर क्षमता है हमारी सेटिस्फेक्शन करने की, ठीक है, आफ्टर यूज, ठीक है, तो वी कॉल दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर. सो इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर. ठीक है. सो मैं यहाँ पे कुछ ये चीजें लिख रही हूँ, आप इनकी फोटोग्राफ क्लिक कर लो जल्दी जल्दी. सो योर टाइम विल बी सेव्ड. अदर नेम फॉर दिस इज, सो यहाँ पे और यूज करना था मुझे, यहाँ पे भी और. सो अदर नेम फॉर दिस, another one is that is the indifference. So it is indifference curve analysis. की फोटो क्लिक कर लो एक बारी, फिर मैं यूटिलिटी का समझा रही हूँ आपको. यूटिलिटी का भी नहीं तो लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख देती रुको, फिर बाद में क्लिक करना. सो व्हाट इज यूटिलिटी? दोनों में वर्ड यूटिलिटी यूज होता है, यहाँ पे तो है यूटिलिटी हो रहा है यूज. So utility is want satisfying power of a commodity. ठीक है. So this is, now click this one. Click the screenshot. Done, I guess. So if you're done, just send me thumbs up then. Now we're going to start with the cardinal utility approach first. So we're going to start with the cardinal utility approach first. ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अगर हमें टाइम लग गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हम चैप्टर फिनिश कर लेंगे फॉर रिविजन पार्ट, फिर हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. आज मुझे सिर्फ एक ही बच्चे का डाउट आया, बाकी किसी ने डाउट ही नहीं पूछा आपको. मैंने जबकि बोला था डाउट्स पूछ लेना, बता रही हूँ एक बार, फिर आपके वो टॉपिक को ज्यादा हम अच्छे से करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब किसी भी चीज की सेटिस्फेक्शन हम लोग टेस्ट के बेसिस पे देखते हैं. ठीक है. तो जब हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को एक कंक्रीट टर्म्स में, एक मेजरेबल टर्म्स में हम लोग यूज करते हैं, तो वी कॉल दैट इज अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ठीक है. सो क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटी की टर्म्स में, नंबर्स की टर्म्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वी कॉल दैट इज योर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमारे पास नंबर्स में वैल्यूज होंगी, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आपके पास कोई वैल्यूज नहीं होंगे एज सच. हम लोग सिर्फ कंपेयर करेंगे द कर्व्स. ठीक है. सो दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट देखो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. सो अब आपका यूटिलिटी का मीनिंग दिया हुआ है 2.2 पेज पे. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, सो दैट इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी. अब यूटिलिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं? जैसे बेटे जी रिदम ठाकुर, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क मी क्वेश्चन ऑफ द लास्ट चैप्टर. आस्क मी लेटर ऑन. वेरी बैड. आई ऑलरेडी सेंड यू वॉइस मैसेज. आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. ठीक है. चैप्टर 1 में से मैंने आपको सारा क्लेरिफाई कर दिया था. कुछ नहीं करना हमने, ये पीपीसी के साथ रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं करना. ओके. सो नाउ लेट मी कंटिन्यू. सो यूटिलिटी के लिए जैसे हमारे पास किसी भी वेट को मेजर करना है, तो वी हैव द यूनिट पाउंड्स, केजी. ठीक है. सो ऑल आर देयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, ठीक है, यूटिलिटी की बात करेंगे तो इसको जो मेजर करने का यूनिट है, दैट इज यूनिट फॉर मेजरिंग, यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इज यूटिल. यूटिल. सो हमारी सेटिस्फेक्शन जब भी हम लोग कहेंगे तो हमें मिलेगी यूटिल्स में. सो यहाँ पे जो यूनिट है फॉर मेजरिंग यूटिलिटी
from a particular product that is in the form of utils. So it is a unit of measuring utility. Util. ठीक है? So that is the point. Another thing, then as they have mentioned ice cream and they have given the example. So let's see on ये सारा बस इतना सही है. आपके इन्होंने बताया जैसे हम लोगों ने आइसक्रीम ली, आप एग्जांपल दिया है 1 यूटिल इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 1 रुपी. अगर हमने 5 यूटिल्स की हम लोग सेटिस्फेक्शन है, हमने 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किए, ठीक है, 1 रुपए का एक हमारे पास कप ऑफ आइसक्रीम आ रहा था, ठीक है, तो वी यूज दैट, तो हमें 1 रुपए में 1 यूटिल मिल रहा है, मतलब हमें 1 यूनिट की यूटिलिटी मिल रही है वहां पे. सो इन दैट टर्म्स वी कॉल दैट इज योर यूटिलिटी अप्रोच विच वी आर यूजिंग हियर. सो यूटिल्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं. So there is a term for this utility. ठीक है. अब इसके बाद जो हमने कंसेप्ट करना है that is यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए हैं. सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर. सेटिस्फैक्शन क्या होती है, प्लेजर क्या होता है. प्लेजर होता है कुछ हमने एंजॉय करके खाया, ठीक है. सेटिस्फैक्शन होती है जस्ट पेट भरना था, भर लिया. So that is satisfaction. ठीक है. Another thing is they have just mentioned the word utility. मैंने आपको पहले समझा दिया. यूज होता है such word. डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सो ये हर बंदे के हिसाब से चेंज होती है यूटिलिटी. मेरे अकॉर्डिंगली यूटिलिटी कुछ और होगी. मेरे लिए मार्कर की यूटिलिटी है दैट इज माय ऑपरेशनल थिंग, ठीक है. सो दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर माय वर्क, ठीक है. सो दिस इज द यूटिलिटी फॉर मार्कर इज डिफरेंट फॉर मी. आपके लिए आपने क्रिएटिविटी के लिए यूज कर रहे हो, कुछ बनाने के लिए यूज कर रहे हो. सो फॉर दैट पर्पस द यूटिलिटी ऑफ दिस इज डिफरेंट. सो इन दिस कंसेप्ट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सो हर पर्सन के लिए यूटिलिटी जो होती है हर चीज की दैट इज डिफरेंट. सो आई गेस दिस मच इज क्लियर टू यू. अगर क्लियर है तो जस्ट सेंड मी थम्स अप. फिर हम लोग कंसेप्ट करें टोटल यूटिलिटी, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट मुझे बच्चे ने पूछा था. सो हमें यही 2 कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो मेनली करने हैं, ठीक है. ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द कंसेप्ट ऑफ नाउ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. So there are 2 concepts. One is total utility. Another is marginal utility. ठीक है. अब दोनों कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझना. टोटल मीन्स जितने भी यूनिट्स. सपोज मैंने कहा था अभी 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हमने लिए, ठीक है. 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम लिया तो 5 यूनिट्स हो गए. जब हम हर यूनिट की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वी गेट द यूटिलिटी दैट इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है. सो व्हेन वी ऐड ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी देन वी गेट द यूटिलिटी. उसमें से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वी कॉल दैट इज योर टोटल यूटिलिटी, ठीक है. आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है इन डार्क, ठीक है, बोल्ड एंड इटैलिक्स में दिया हुआ है. यहाँ पे टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द consumption of all possible units of a commodity. So it measures total satisfaction obtained from consumption of all units of that commodity. So इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये that is important. इसके ऊपर बेस समझा जाता है. जैसे हमने टीपी का किया था वैसे काइंड ऑफ इसके भी फॉर्मूलाज है. सो यहाँ पे U1, U2 these are the units of a commodity, ठीक है. लास्ट U4 और ये लास्ट तक जाता है जब तक हमारा UN होता है, ठीक है, प्लस UN. सो टिल इन्फिनिटी जहां तक हमारा नंबर जाएगा. सो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला ये होता है. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम टोटल यूटिलिटी में, ठीक है, एक और यूनिट ऐड कर दे, एडिशनल कर दे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी यूटिलिटी में क्या चेंज आया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. addition की वजह से. marginal means addition, something new and that will be added to the already calculated value, ठीक है. तो total utility में अगर हम एक और यूनिट ऐड कर देते हैं, ठीक है, we call that as your marginal utility. so इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी. total marginal utility की डेफिनेशन देखो. marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. जब हम एक और यूनिट ऐड कर दें,
इसी के अंदर अगर बोले तो दैट वी आर गेटिंग, उसमें से जो यूटिलिटी मिल जाएगी दैट वी कॉल इट एज मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसके लिए वर्ड आएगा हमारा MUN। जस्ट गोइंग टू राइट डाउन, इसको थोड़ा रब कर देते हो यहाँ पे। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। पहला फॉर्मूला जो है हमारा दैट इज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ये हमने सेम फॉर्मूला आपका MP में भी किया था, उसका भी जैसे था, बस यहाँ पे वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। दूसरा फॉर्मूला भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। MUN को अगर लेंगे हम लोग तो चेंज इन TU ओवर चेंज इन क्वांटिटी, सो दैट इज द यूनिट्स। सो ये भी सेकंड फॉर्मूला है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। टिल दिस आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। अभी तक जितने हमने किए हैं मार्जिनल यूटिलिटी का जिसका कंसेप्ट था, जिसको नहीं क्लियर हुआ था वो क्लियर हो गया। प्लीज टेल मी नाउ क्विकली। फिर हम लोग इसको ग्राफ में कर रहे हैं, हो गया क्लियर? चलो हम लोग इसी को अब करेंगे विद ग्राफ। पहले आपकी बुक में टेबल दिया है, टेबल 2.1, जस्ट गो थ्रू दैट। सो TU का हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक वर्ड और आना है यहाँ पे, TU को हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ MU। जितने भी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का आ जाएगा दैट विल बी समेशन ऑफ MU, दैट कैन बी आल्सो द वर्ड। ठीक है, ये आपके टेबल के बेसिस पर मैंने बताया, जितने हम यूनिट्स ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से हमारे पास ये आ जाएगा एडिशन के। तो TU के अंदर अगर हमें एक आधा यूनिट यहाँ पे और भी ऐड किया तो इट विल बी समेशन ऑफ MU। जितने भी MUs है हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल फिर भी हमारे पास यूटिलिटी आएगी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को जरा टेबल 2.1 में देखो क्या चीज है। सो व्हाट इज गिवन इन टेबल 2.1? See, there are units of ice cream they have just used for consumption. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 that is the units they have given. Then marginal utility, they have given you marginal utility and that marginal utility is 20 16 10 4 0 6। अब उसी वैल्यू को उन्होंने ऐड करते गए हैं। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी दिया होता था तो हम लोग CF निकालते थे, तो योर दिस marginal utility is F, that is frequency, and your this TU is they are acting that as that is your CF, cumulative frequency। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ऐड कर दिया। सो ये जो कॉन्सेप्ट था अभी ये जो आपका जस्टिफाइबल हो गया। ठीक है, so see the first unit is 20, then 20 plus 16 that is 36, next unit is 36, then 36 plus 10 it is 46, 46 plus 4 that is 50, 50 में 0 ऐड किया 50, then minus 6 it is 44। so टेबल तो सबको समझ आ गया होगा। अब आपका जैसे हमने TP का किया था और MP का रिलेशन किया था, सेम वही कॉपी है यहाँ पे। मैंने जब आपको शुरू में करवाया भी था वही चीज मैंने बोली थी यहाँ पे भी होगी। ठीक है, so let's do it with the graph now। हमारे 3 फेजेस होते थे, फेज 1 फेज 2 फेज 3। ठीक है, तो सेम फेजेस आते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट हमने बनाया दैट इज फॉर TU, दिस इज y axis, दिस इज origin point, units of output। यहाँ पे आइसक्रीम आपका आ जाएगा, वैसे आई एम जस्ट राइटिंग आइसक्रीम। सो x ये हो गया। देन नेक्स्ट यूनिट इज नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर दिस इज फॉर y, this is MU, हाँ जी, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ही लिख दिया आपका। ठीक है, ये हमने ऐसे किया था कि ऐसे आता है हमारा TP का ग्राफ। बेसिक के बेसिस पे हमने नेक्स्ट बना लेना। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, जो हम लोग फर्स्ट स्टेज लेते हैं इसी के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, जो MU है हमारा, ठीक है, उसके बाद ये जो है मैक्सिमम स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड, एंड इसके बाद जो आ जाएगी दैट विल बी योर लास्ट स्टेज। तो यहाँ पे जाके ये जो पॉइंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, MU नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द सेकंड स्टेज, इसके बाद थर्ड स्टेज है हमारी। सो यहाँ पे क्या है, हमने पहले भी किया था, यहाँ पे हमारी जो है TU जो है इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद वो इंक्रीज तो करेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट।
ठीक है, उसके बाद फिर जो TU है एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के बाद फिर वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। MU क्या है, पहले ये बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा, भी बढ़ रहा था अपनी तरफ से, तो ठीक है, अब इसी साल डिक्लाइन करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कर रहा था बट कम कर रहा था। फिर जब ये बढ़ रहा था पर कम रेट पे बढ़ रहा था, ठीक है, तो ये बी डिक्लाइन बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गया, मतलब कॉपी करेगा उसको। अब ये डिक्लाइन किया तो वो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा। So that is the relationship which we have already covered for even TP and MP. तो वही relationship हमारे यहाँ पे बनता है। I hope this is like clear to you all. Easy है, इतना difficult नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा MU is equal to 0. इस पॉइंट पे MU जो आएगा that is 0. इस पॉइंट पे आ जाएगा MU नेगेटिव। ठीक है, सो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी थी, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ जी, इज दैट क्लियर टू यू? अगर समझ आ गया तो बता दो, न्यू स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ आया तो आई कैन एक्सप्लेन यू इन द इवनिंग। बाकी ओल्ड वालों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो जस्ट सेंड मी थम्स अप इफ यू नो द कंसेप्ट। क्लियर हो गया तो ये कॉन्सेप्ट हमारा 3-4 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ठीक है, सो आई गेस यू पीपल आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। फाइन, ओके, so let's now continue with the next thing. Now the next thing is explore more about marginal utility. तो marginal utility हमारे पास 3 तरह की होती है, one is positive and other is zero and last one is negative. So नाम से clear है what is positive. When your values of marginal utility are in the positive terms, so we call that as a positive marginal utility. So if total utility increases from consumption of additional units of a commodity and marginal utilities of these units will be positive, तो positive रहती है तो we call that as your positive marginal utility. ये वाली जो होगी that is positive marginal utility. यहाँ पे जो आई that is zero marginal utility. ठीक है, हमारे पास एडिशन तो हुआ, टोटल जो यूटिलिटी थी, ठीक है, बट जो हुआ उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। ठीक है, सो दिस इज 0 मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हमारी जो था TU डिक्लाइन किया और उसकी वजह से चेंज आया तो हमारी MU नेगेटिव होगी। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सो इतना क्लियर हो गया सबको? TU एंड MU का रिलेशनशिप आप खुद करोगे, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज लॉ ऑफ DMU. So law of DMU. So anybody can tell me what is the full form of DMU? गाड़ी वाली DMU मत बोलना, ट्रेन वाली नहीं DMU, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लॉ ऑफ DMU. So what is that? हाँ जी, what is law of diminishing marginal utility? Full form. Manibha has given me first full form. Muskan has given me. Okay, right, very right. Fine. So already everybody know what is that. So law of diminishing marginal utility क्या कहता है? So what it states? हम लोग कोई भी चीज रोज खाते जाए, रोज कंज्यूम करते जाए, सेम रूटीन हो, सब कुछ बोरिंग हो जाए, तो व्हाट हैपेंस, हमारा इंटरेस्ट छूट जाता है। सो हमारा इंटरेस्ट उस चीज में से खत्म हो जाता है। वी डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। सो व्हाट इज दैट? दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक ही चीज बार बार हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे यूज कर लें, ठीक है, बार बार उसी चीज को हम लोग कंज्यूम कर लें। सो इन दोस टर्म्स वी कॉल दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन देखो, दैट इज गिवन इन योर बुक। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. So जितने हम units उसके consume करते जाएंगे, successive unit means next units, additional units, तो जितने हम units add करते जाएंगे उनकी जो value है it comes to negative. ठीक है, वो कम हो जाएगी। तो हमने यही तो किया था। अब सपोज करो किसी की, चलो अपनी फेवरेट मिठाई बताओ सारे, तो मैं एक चूज करूंगी उसमें से। So let me see who is telling me the proper sweets. जो आपकी फेवरेट वाली स्वीट्स है, जब फास्ट फूड बता दो कोई आपका फेवरेट वाला, then I can give you example and we have to assume accordingly and फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। हाँ जी, give me quickly.
answer for that. Hurry up. Yes. Okay, pasta. Who likes pasta? Ice cream. Milk cake. Arlene is giving me answer for that. Okay. So ice cream, milk cake. What else? You can give me answer. Rest. They are not giving. Yes. Okay, gulab jamun. Okay. ठीक है. So let's now start. ठीक है. Suppose अब किसने एग्जाम्पल दिया था कि आई लाइक मिल्क केक. अगर हम मिल्क केक खाते रहे सपोज मैंने आपके आगे 5 किलो मिल्क केक रख दिया, ठीक है, एंड दैट इज योर फेवरेट वन. मैंने आपको बोल दिया खत्म कर दो, जैसे मर्जी करो, यू गोइंग टू फिनिश इट, तो आपको मैं कुछ प्राइस दूंगी, ठीक है. तो आप लोग मैक्सिमम कैपेसिटी की होगी, एक बारी तो पूरा वो फिनिश कर दोगे, उसके बाद आप उस चीज की शक्ल तक नहीं दिखोगे. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज. पिज्जा. ओके ईशाज आंसर इज पिज्जा. पिज्जा तो जितना मर्जी खिला दो है ना आप लोगों को, पर एक ही टाइम पे अगर हम वही चीज बार बार कंज्यूम करेंगे तो वी डोंट लाइक इट मच, ठीक है. सो दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. अगर मैं भी आपको एक ही टॉपिक पढ़ाती जाऊँ बार बार हमने कहा मैडम तो यार शुदैन हो गई है, ठीक है, तो मैडम को तो यार इसको तो कुछ हो गया मैम को, ठीक है. सो इन दैट टर्म व्हाट इज दैट अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो आपको जो मेरी सुनने की जो आपको टाइम था, आप लोग उससे से उसके बाद बोला कि बस अब ले जाओ इस मैम को, बहुत हो गया भाई, हमने बहुत पढ़ लिया, अब नहीं. क्योंकि हर बंदे की एक genuine quest for learning from a particular person and watching that person is, ठीक है, so is that is only 40 minutes to see that person and learn from that person is only 40 minutes, ठीक है. तो तभी हम लोग कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, आपको समझ आता रहे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते रहे, इंटरेस्टिंग आपकी यूटिलाइजेशन हो, आपकी एनर्जी यूज हो, आपके सेंसेस यूज हो, तो उसकी वजह से हम लोग और अच्छे से लर्न एंड अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी लाइफ में बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. हम कोई चीज पहन के थक जाते हैं, हम कहते हैं यार ये कपड़ा ही नहीं फट रहा. सो इन दैट केस ऑल्सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो हमारी उस चीज की जो पहनने की, उस चीज को यूज करने की जो हमारी कैपेसिटी, दैट इज नाउ गेटिंग लेसर डे बाय डे. सो दैट इज द पॉइंट वी वर डूइंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हिच आई एम डूइंग विद यू. सो ये जो लॉ था इसको अदर नेम क्या दिया गया, दिस लॉ इज एप्लीकेबल to all goods and services. So that is why I've given you example from all the context, ठीक है. तो मैंने आपको फूड से लेके आपको कपड़ों तक से लेके आपको अगर हाँ चलो एक और चीज देती हूँ एग्जाम्पल. आपको अगर एक ही मूवी जो आपकी फेवरेट है 15 बारी बोला जाए देखने के लिए, 20 बारी बोला जाए, 100 बारी बोला जाए, तो अल्टीमेटली आप बोलोगे यार अब तो मुझे फ्री में भी नहीं ये देखनी मूवी. सो दैट इज अगेन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो ये सारी चीजों में ऑलरेडी मतलब हम लोग कहते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है. सो इसी लॉ को हम लोगों ने अदर नेम जो दिया इसको हम लोग दिस वाज गिवन बाय H.H. Goosen. सो जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने दिया था इसको, ही वाज जर्मन इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था H.H. Goosen. ही हैज गिवन दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो इसको हम लोग, इसका जो नेम है दैट इज Goosen's first law of consumption. So he has given that name. Okay. So Goosen's first law of consumption. That is the name given for this. Now the next thing is, which I am telling is assumptions for this law. हाँ जी, जब भी हमने law लिखना मैं आपको पहले फिर बता दूं. First thing which we have to do it is statement of the law. ठीक है. The very first thing which we have to write in attempting your law के ऊपर based question आता है, अगर 5 marks में question आ जाए तो how you have to attempt. The first thing is you have to give the statement of the law. उसके बाद अदर नेम भी हो तो वो भी साथ में लिख दो अगर कुछ है तो, किसने दिया, ठीक है, इकोनॉमिस्ट का नेम जिसने दिया था
वो सारा फर्स्ट पॉइंट में कवर कर दो। नेक्स्ट आएगी स्टेटमेंट के बाद हमारे पास क्या थी, एजम्पशंस। अब कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये लॉ जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इस दैट इज assumptions। कौन सी चीजें हमें माइंड में रखनी है while we are thinking of this law, ठीक है। सो दैट इज assumptions, so let's do that, ठीक है। सो अब फर्स्ट assumption है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो हमारी जो यूटिलिटी आनी चाहिए दैट इज मेजरेबल, नंबर्स में आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास उसका आंसर नंबर्स में होना चाहिए। मैंने 5 यूनिट्स ऑफ लाइक आइसक्रीम कंज्यूम किए, सो आई गॉट द 5 एज नंबर, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब मैंने वो जो 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम खरीदे थे, दैट आई स्पेंड 5 रुपीज फॉर ऑल 5 यूनिट्स, सो 1 रुपी फॉर 1 यूनिट ऑफ दैट यूटिलिटी। सो हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी होता है इसके लिए। सो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी शुड बी ऑल्सो देयर। सो यूटिलिटी को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर लेवल तक हम उसे क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे। सेम आइसक्रीम, सेम जो ब्रांड है, सेम क्वालिटी, वही यूज करेंगे, बार बार वही चीज खाएंगे, ठीक है। डिफरेंट नहीं करेंगे, उसमें कुछ एडिशन नहीं करेंगे, कुछ उसका टेस्ट हम डिफरेंट नहीं करेंगे। अगर डिफरेंट करेंगे तो फिर तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हमें सेम चीज बार बार कंज्यूम करनी है, ये चीज मान के चलनी है, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल लेवल तक हमें वही चीज कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, वही चीज की बार बार कंजम्पशन करनी है, कॉन्टिन्यूअसली कंजम्पशन करनी है। So that is the point. Next thing is no change in quality. So also I said there is no change in the quality. Quality should be same, same brand, same money, वही हमने spend किया होना चाहिए, और same type of the product which we are already consuming, ठीक है, वही use करना है। Next is rational consumer. Rational consumer हमेशा ये सोचता है कि जितना मैंने पैसा लगाया मुझे उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब अगर मैंने 5 रुपए लगाया तो मुझे 5 रुपए के हिसाब से सेटिस्फेक्शन भी मिले। दैट इज द रीजन हमारी जो मदर्स होती है मार्केट में जाती है, बार्गेनिंग करती है, उनको लगता है नहीं ये तो ज्यादा चार्ज कर रहा है बंदा, ठीक है। तो हमेशा जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेती हैं स्पेशली, ठीक है, तो आवर मदर्स दे यूज्ड टू डू इट लाइक दैट, ठीक है। सो दे जस्ट बार्गेन फॉर दिस रीजन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रैशनल कंज्यूमर, बिकॉज दे ट्राई टू बी रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का होता है हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट दें और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ले और अपनी सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपर करें। सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। अब जो चीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सबकी अलग अलग इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है, ठीक है। सो इट इज assumed that all the quantities consumed by a consumer are independent. So जो भी हम लोग कंज्यूम करेंगे उसका किसी और कमोडिटी के रिलेशन के साथ कुछ नहीं है। अब अगर मैं मार्कर यूज कर रही हूँ तो इसके जो यूटिलाइजेशन है उसकी इसकी जो यूटिलिटी है मैं मोबाइल के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकती, लैपटॉप के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकती। सो इनकी इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज होती है जिस भी चीज की हमने सेटिस्फेक्शन लेनी है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मनी की जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी चेंज होती है, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी चेंज होती है, इट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट थिंग इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। जो भी हमारी इनकम है वो फिक्स रहती है एंड प्राइसेस भी हम लोग ये मान के चलते हैं इस लॉ के लिए सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। यस, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं जो रैशनल कंज्यूमर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज द रीजन कि जो कंज्यूमर्स है, कुछ लोगों को पेप्सी पसंद होती है, किसी को कोको कोला पसंद होता है, सॉरी पसंद होता है। सो रीजन क्या है? रीजन इज बीइंग कि उनको उसका प्रॉपर नॉलेज है, उस चीज का परफेक्ट नॉलेज है, तभी वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्यों पेप्सी नहीं पसंद, क्यों कोको कोला नहीं पसंद। मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट पीपल जो बहुत ज्यादा मतलब हम लोग कहते हैं कि जिनकी एक ब्रांड लॉयल्टी बनी होती है तो दे प्रेफर टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उनको बड़ा जल्दी डिफरेंस पता चल जाता है इसमें क्या डिफरेंस है। नो डाउट मुझे बच्चों का पता चल जाता है इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप ड्रेसअप होके आए हो, कुछ चेंज करके आए हो, तो लास्ट ईयर इट वाज हैपेंड when child was in grade 9 and he was wearing eyelenses and that was of different color, तो मैंने उसको पकड़ लिया, कहता मैं तो रोज लगा के आता हूँ। सो ये चीज हमारी रहती है। तो अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से मतलब यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आप देख रहे हो,
मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बड़ी जल्दी पता लगा लेते हो क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. So these are the assumptions of your law of diminishing marginal utility. ये चीजें हमारे पास फर्स्ट रॉ मटेरियल रेडी होना चाहिए, तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल सॉरी दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो आई गेस assumptions आर क्लियर टू यू. अगर assumptions क्लियर है, ठीक है, देन सेंड मी थम्स अप. अगर आपको कोई डाउट है तो वी कैन जस्ट डिस्कस इट इन द इवनिंग. सो मुझे डाउट भेज देना, नहीं तो मैं कॉल कर लूंगी आपको. आई हैव नो इशू, ठीक है. आई कैन गिव यू कॉल इन द इवनिंग. अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, अगर नहीं क्लियर है तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो आपने वही जो हमने पहले लिया था स्केड्यूल, वैसे ही स्केड्यूल है, बस इन्होंने टोटल यूटिलिटी पहले कर दी है और अब मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट में कर दी, क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी दिखानी है. सो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने लास्ट वाला ग्राफ बनाया था, दोनों जो फर्स्ट देखिए हमने 2.1 टेबल के साथ जो बनाया था हमने ग्राफ, मैंने आपको एमयू का बताया था. सो एमयू को सिर्फ आपने ड्रॉ करना है, ठीक है. वही चीज है अगेन, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी थी, फिर उसके बाद जीरो हुई, देन उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स देन वी हैव नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. तो वही पॉइंट्स है हमारे, वही मेंशन किया गया है. तो अब इसके बाद हमें क्या दिखाना होता है? द थर्ड पॉइंट इज टेबल फॉर द लॉ, ठीक है. सो आपने टेबल बनाना है इसके साथ रिलेटेड. सो टेबल बनाओगे, स्केड्यूल भी बोलते हैं हम लोग. सो वर्ड स्केड्यूल, ठीक है. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड. एंड आफ्टरवर्ड्स टेबल के बाद हमें बनाना होता है कर्व, कर्व फॉर द टेबल और स्केड्यूल, ठीक है. तो आपके हो गए कितने? अब हमारे हो गए 4 पॉइंट्स. तो ये अगर 4 पॉइंट्स लिख के आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इन दैट यू हैव टू राइट ऑन ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है. सो मार्जिनल यूटिलिटी वाला आपको ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ. सो आई गेस नीड नॉट टू वेस्ट माय टाइम अगेन. पहले मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, फिर एक लेवल पे जाके मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी जहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, फिर उसके बाद चेंज कोई नहीं आएगा, उसकी हमारे पास रिटर्न्स नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वी कॉल दैट एज मार्जिनल यूटिलिटी इन नेगेटिव, ठीक है. सो ये आपके पॉइंट्स हैं. आई गेस दिस मच इज क्लियर टू यू. कितना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर है सबको? सो फॉर टुडे आई गेस इतना ही मेरे को लगता है हो पाएगा. सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. अभी मुझे देखने दो कितना रह गया है. आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रहती है, अभी कॉन्सेप्ट्स. कल हम लोग ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे एंड आपका डिमांड चैप्टर करेंगे. सो आज के लिए आपने रिवाइज करना है ये वाला चैप्टर, जो ये वाला जो पार्ट रह गया, ठीक है, वो रिवाइज करोगे. प्लस आप लोग क्या करोगे, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. जो आपका पार्ट रह गया हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 कमोडिटीज एंड सिंगल कमोडिटी, वो करेंगे. आफ्टरवर्ड्स आपने क्या करना है, दैट इज योर डिमांड चैप्टर के जो आपके रहते हैं पॉइंट्स, थोड़े से स्टार्टिंग जो है आपका टिल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है. सो हम लोग इतना ही करेंगे कल. सो आप लोगों ने इतना प्री रीडिंग करनी है. आपके डाउट्स होंगे तो यू कैन बी सेंडिंग मी, यू कैन सेंड मी ऑल द डाउट्स, फाइन. सो आज जितना हमने किया है सबको क्लियर है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसके बाद आपका जो है यही कॉन्सेप्ट था, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है हमने, ठीक है. तो बस यही पॉइंट्स है आपके, 4 पॉइंट्स हो गए. इसके साथ आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन दे देनी है बस. आपके 5 नंबर इसमें हो जाने. 5th पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दे दो, दैट्स इट फॉर द टेबल, क्या क्या हमारे पास था, ठीक है. सो आई गेस एवरीबॉडी इज क्लियर विद द थिंग्स. जितना हमने किया सबको समझ आ गया? अगर आ गया सबको समझ तो प्लीज सेंड मी थम्स अप क्विकली. कोई डाउट तो नहीं है? Then I'm going to end your class. तो हमने आज के लिए क्या क्या किया था? We have done consumer, ठीक है. उसके बाद हमने यूटिलिटीज पढ़ी है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था, ठीक है.
सारी चीजें हमने आज जो करी हैं ये वाली थी सारी। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कर रहे थे, टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप किया था हमने। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन टुडे। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने घर पे रहो, अपना ख्याल रखो, पेरेंट्स का ख्याल रखो। इमरजेंसी नहीं है तो कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, पेरेंट्स को भी नहीं जाने दोगे। ठीक है, इफ दे गोइंग तो उनको बोल लो कि प्रॉपर बॉडी कवर करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर साथ लेके फिर वो जाएं। अदरवाइज द सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर एनीवन। So if it is not supportive, then we need to just take the precautions and to live at home, stay at home. So thank you so much. God bless you all. Take care, stay happy, stay healthy at home, and enjoy learning with Cambridge International School, the SUA. Thank you so much.